Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, friends, and viewers. I welcome you all in the lecture series of the terms relating to politics and international relations. In today's video, we are going to study and learn summit diplomacy. Summit diplomacy is a kind of diplomacy in which top level meetings between the heads of the governments are held. But why? Why they meet and what is the basic reason behind their meeting? All these things we are going to learn in this video. So let's start learning. Summit diplomacy is a term that was introduced by Mr. Churchill, who remained Prime Minister of United Kingdom during 1940 to 1945. The term summit diplomacy refers to top level meetings in which heads of the conflicting governments. It means those governments which are facing any bilateral or multilateral conflict. So their heads meet with each other. Why they meet? They meet to negotiate over and sort out key issues and conflicts. So, we can say that summit diplomacy is a diplomacy in which top level meetings are held between or among the heads of the governments to reach on an agreement and to sort out their conflicts, their mutual problems. I am sorry. So we can say that summit diplomacy is state based diplomacy. It is official, formal, and track one diplomacy because top level leadership is involved in this kind of diplomacy. So it's track one diplomacy, it's formal diplomacy. In past, such type of direct negotiations and such type of high level meetings were very rare, but in recent years heads of governments started to meet with each other on more regular basis and to discuss their issues directly. Let's have a look on the examples of summit diplomacy and on the benefits of summit diplomacy and on the kinds of types of summit diplomacy. Summit diplomacy can be bilateral. As you all know, what is bilateral diplomacy? Bilateral diplomacy is a diplomacy in which only two actors are involved, and multilateral in which more than two actors are involved. It is not compulsory that those actors must be states. They can be international organizations and they can be states. So, when a conflict between two states or between more than two states involves a serious issue, a serious dispute, and they are not comfortable to discuss that issue directly, they can invite a third party that is called mediator. Summit diplomacy sometimes produce very tangible results, very fruitful results. If we take a very recent example, that is nuclear Iranian deal, Iranian nuclear deal that was reached in July 2015 after extensive meetings among the uh, conflicting parties, Iran, European Union representatives, and three other countries, China, Russia, and US. All such meetings were held in Vienna, that is the capital city of Austria, as E3. E3 are those
countries, those European countries which are said the founding countries of the EU, Italy, Germany, and France. And three, I have just told you, that is Russia, China, and US and Iran worked in a series of summit meetings to conclude an agreement related to Iranian nuclear technology. In a joint comprehensive plan of action, Iran agreed that under no circumstances will Iran ever seek, develop, or acquire any nuclear weapons. In return for adopting a peaceful nuclear program, the E3 plus 3 agreed to the comprehensive lifting of all UN Security Council sanctions as well as multilateral and national sanctions related to Iran's nuclear program, including steps on assessed in areas of trade, technology, finance, and energy. ये जो डील साइन हुई ईरान के साथ E3+3 कंट्रीज़ की, उसमें म्यूचुअल बेनिफिट्स थे। ईरान को ईरान ने जब इस बात को तस्लीम कर लिया कि वो ऐसा जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ नहीं करेगा, बल्कि उसको पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करेगा, तो इन रिटर्न उसे क्या मिलेगा? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो इकोनॉमिक सैंक्शंस इम्पोज की हुई हैं और दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जो उसकी ट्रेड नहीं हो रही, तो वो सारी सैंक्शंस अपलिफ्ट कर ली जाएंगी, वो ख़त्म कर दी जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो ट्रीटी साइन हुई, ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ, अगर ये एक्सटेंसिव मीटिंग्स ना होती ईरान के साथ E3+3 कंट्रीज़ की, तो इस डील तक कभी भी नहीं पहुंचा जा सकता था। इसका जो पीसफुल सल्यूशन है, जो इसका एक बहुत ही पीसफुल फेस है जो इस इशू को सॉर्ट आउट किया गया है, वो कभी भी पॉसिबल ना होता। एक और एग्जांपल लेते हैं, कैंप डेविड एकॉर्ड 1978। कैंप डेविड एकॉर्ड, ये एकॉर्ड भी समिट डिप्लोमेसी की वजह से ही पॉसिबल हुआ। आप लोगों को याद होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब जर्मनी जंग हार गया और जो उसका साथ देने वाले कंट्रीज़ थे उसमें ऑटोमन एम्पायर भी शामिल थी, तो उस वक़्त ऑटोमन एम्पायर के जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी है वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट थी, और उसके बाद से वो बरतानिया के हिस्से में चली गई। बरतानिया ने उसको अपने कब्ज़े में कर लिया। बेलफोर डिक्लेरेशन आई, जो शरीफ ऑफ मक्का था उसके साथ भी बरतानिया ने एक प्रॉमिस किया, और इसके साथ साथ फ्रांस के साथ भी एक प्रॉमिस किया जो कि वर्ल्ड वार वन में उसको सपोर्ट कर रहा था, यानी आप ये कह लें कि वो सेम पेज पर थे। लेकिन उसके बाद ये बाल्फोर डिक्लेरेशन में भी ये कहा गया, यहूदियों से प्रॉमिस किया गया उन ज्यूज़ के कि आपकी जी एक स्टेट बनाई जाएगी इस टेरिटरी के ऊपर। और उसके बाद जब वर्ल्ड वार टू में होलोकास्ट का इंसिडेंट हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया की जो सिंपैथीज़ हैं वो ज्यूज़ की तरफ हो गई, और अगरचे उससे पहले भी एक बड़ी तादाद में जो ज्यूज़ थे वो उस इलाके में फ़लस्तीन में जाके तो वो सेटल डाउन होना शुरू हो गए थे। अगर हम ऑटोमन एम्पायर पीरियड को देखते हैं तो उस वक़्त उनकी जो वहाँ पर पॉपुलेशन थी वो तकरीबन 3% थी, लेकिन उसके बाद वो पॉपुलेशन 30% तक चली गई, और आखिरकार 1948 में 14 मई 1948 को जो इजरायली स्टेट है उसने अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसका बाकायदा ऐलान कर दिया, और उसके फ़ौरन बाद नेक्स्ट डे 15 मई 1948 को इजरायली अरब वार शुरू हो गई। और इस सारे कंक्लूजन को बताने का मकसद ये है कि 1967 में जो वार हुई, 6 डेज़ वार हुई, उसमें बहुत सारे जो इलाके इजिप्ट के थे उन पर कब्ज़ा कर लिया इसराइल ने। तो इसराइल और इजिप्ट ने इन जो कॉन्फ्लिक्ट्स थी इनको पीसफुली सॉर्ट आउट करने के लिए जो इनकी स्ट्रगल थी वो कंक्लूड हुई जिमी कार्टर की मदाखलत से, जिमी कार्टर की कोशिशों से। और 1978 में जो प्रेसिडेंट जिमी कार्टर है उसने इन दोनों इजरायली प्राइम मिनिस्टर मेनाकेम बेगिन और जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट थे अनवर सादात, इनको अमेरिका बुलाया, इनको इनवाइट किया वाशिंगटन डीसी में, और वहाँ पर इनके दरमियान
एक्सटेंसिव मीटिंग्स हुई और सम टाइम ऐसी नौबत भी आई कि ये कहा, ऐसा लग रहा था कि ये जो मीटिंग है, ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो सीरीज़ ऑफ मीटिंग है, ये बेकार हो जाएगी, इसका कोई टेंजिबल रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे। लेकिन जो जिमी कार्टर है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, उसने जो दोनों प्रिंसिपल्स थे, यानी जो दोनों मेजर एक्टर्स थे इस कॉन्फ्लिक्ट के, इजरायली प्राइम मिनिस्टर और इजिप्शियन प्रेसिडेंट, उनको डायरेक्ट निगोसिएशन से जब उसने देखा कि कोई बेनिफिट नहीं हो रहे, तो उसने उन दोनों के दरमियान एक मीडिएटर का रोल प्ले किया। और वो दोनों अलग अलग जगहों पे ठहरे हुए थे। वो रेगुलरली कभी एक की तरफ जा रहा है, कभी दूसरे की तरफ जा रहा है, और यहाँ से एक नई जो फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी है, जो एक नई काइंड ऑफ डिप्लोमेसी है, दैट एमर्ज्ड, दैट वाज नेम्ड एज शटल डिप्लोमेसी। कि कभी वो इजिप्शियन जो प्रेसिडेंट है अनवर सादात, उनके पास जा रहा है, और कभी वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर के पास आ रहा है, और दोनों को एक दूसरे के साथ कि जो जो म्यूचुअल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन तक लाने की कोशिश कर रहा है। और अल्टीमेटली जो 1978 के अंदर ये एग्रीमेंट साइन हो गया, और आज के दिन तक अगर हम इजिप्ट और इसराइल के दरमियान कोई मेजर इंसिडेंट की बात करें, तो वो कैंप डेविड अकॉर्ड के बाद हमें नज़र नहीं आता। सो वी कैन से कि ये जो कैंप डेविड अकॉर्ड है, इट इज़ आल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ समिट डिप्लोमेसी, और इसके जो फ्रूट हैं, जो इसके जो रिजल्ट्स हैं, स्टिल दे आर इंटैक्ट। सो दैट वाज ऑल अबाउट समिट डिप्लोमेसी. What is summit diplomacy? Summit diplomacy is a diplomacy in which top level meetings are held by the heads of the government. And why they meet to each other? They meet to each other to sort out their problems, to reach on conclusions, and to get certain mutual benefits, कि जो उनके म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो उनके दरमियान बायलैटरल या मल्टीलैटरल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करके तो कोई गिव एंड टेक पॉलिसी पे किसी कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन पे पहुंचा जाए, ताकि दोनों जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हैं वो फर्दर कॉन्फ्लिक्ट को, वायलेंस को और वार को अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह हम शटल डिप्लोमेसी और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।